I will request all the members to come up. Okay, all of us will stand. कोई चेयर नहीं है. अगर चेयर पे बोलने वाले बैठ गए तो बैठने वालों का क्या होगा? 100% सो जाएंगे. तो इन्हें एक तो बैठने नहीं देंगे. तो इतना इन शॉर्ट है कि ये 9 लोग तो नहीं सोएंगे. दूसरा, इन्हें स्टेज पे जाने नहीं देंगे क्योंकि अगर ये स्टेज पे गए तो दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी. सो ऑल ऑफ देम विल स्टैंड हियर ओनली. बट व्हेनेवर Shrikant bhai is, I hope this format is okay with you, na? Shrikant bhai ke liye everything is okay. But intentionally, you know, और समझ लीजिए जो भी है, by way of system this has happened. So whenever there is a question and whoever is asking, please try to come in the center and speak and have your, I think ये सब IAP स्पेशलिस्ट है तो इन लोगों को तो माइक पे बोलना या किस तरीके से बोलना है, क्या करना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं. हाँ हाँ, चुप कराना पड़ेगा, चुप हो जा. So absolutely. So that's the format. So let's start with this. So are we interested? How many of us are actually have done IAPs till now? Okay. Not 100%. देखिए, वॉलेटिलिटी कोच का मतलब है सर IAP तो करना ही है. IAP, investor meet, okay, in whatever format. When you start using your own content, आपका कोई भी content हो सकता है, okay? किसी को महाभारत सुनाना है, तो किसी को उपनिषद बोलना है, या किसी को जैसे हमारे प्रोफेसर सौरभ बजाज गीता. आप जो content है, use that. But in between, boss, you will have to understand, जो आपके सामने बैठे हैं ना, इंसान है वो. It is very difficult for a person to only listen, and in between answers, हाथ उठा दिया. What is that? Was you need to engage them. और आप अगर गेम खिलवा लेते हैं ना, they are 100% engaged. Their mind, body, teamwork, debate, questioning, answering, they are doing it all themselves. अगर आपके ऑडियंस बिना बोले, बिना शेयर किए, if they are moving out of the hall, they are not satisfied. अगर इस 3 दिन में आप सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से आके अगर अपना कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं ना कुछ, it's like no left. So in order to get that fulfillment, you will have to ensure that each and every client, whoever is attending, he has done something. Making sense? Yes or no? So this is a very easy game, easy thing to do. In a IAP, you need to prepare, you need to talk, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. So this is, you should have this as a part. So some of these people who will be coming, obviously they will be sharing how they have engaged. But I think this speed can actually engage. You all have got the magazine in the kit today. Okay? It has really come out well. And the major work done for that is Nishant है क्या यहाँ? Nishant, can you stand? Nishant और Sneha, she's also working. इन दोनों के लिए तालियां बजानी चाहिए. अगर अच्छा है तो they have worked hard for this. Thank you. So in that we have written one page. You remember in between हम लोगों ने पूछा था आप लोगों ने कितने IAPs किए हैं, कौन सी organization में. We have created one page. On page 15, I think, you will see, as a community, how many IAPs we all have done. This small group of 300 people, it is more than 2,500 in last 1 year. Reaching out to more than 1.5 lakhs people. This too, when everybody is not doing. So just imagine, this can be like no opposition. Okay? So I think, and this is really going to help us. When these people come and share, try to extract. Once they have done, you also ask questions. Because, जैसे मुकेश भाई, वो इंडिया के बाहर बहुत सारे IAPs करते हैं. Rahul, PSUs में he has created अपना, and now other PSUs are actually calling him. Because he has done so much at PSU level, he is like a PSU specialist. Girish, he has become a corporate specialist, private sector to a great extent. Saurav,
सौरभ एक्चुअली आ गया क्या सौरभ? हाँ ये रहा. Saurabh भी again corporates में. Even Saurabh not only connects and do whatever he is doing, he has also helped other city volatility coaches also to get connected and go and do programs. I think Gaurav and Girish will be what you can a testimonial for that. And Mahesh ji, I have not seen him doing many of the meets, but वो बड़ी बड़ी 400 लोग. एक बार मैं करने गया था, उसमें भी 400 लोग को बुला लिया उन्होंने. कहाँ है महेश जी? हाँ ये रहे. वो कभी आशीष सोमैया को बुला लेते हैं, वो भी एक स्किल है. पर आई थिंक उसके साथ साथ आपको गेम एक कराना चाहिए. ये एक प्रण लेके जाना है आपको. किसी को भी बुला लो, नवनीत मनोज को बुला लो या आशीष सोमैया को बुला लो, वो ठीक है. दे आर वेरी वेरी गुड. बट आपको, you are the Amitabh Bachchan of your clients. That's the reality. और रमेश सर का तो कहानी अलग है. Which he will share. Why did he become a volatility coach? He will share. It is only because of the game. And why? It is very very interesting. मैं हमेशा चाहता था कि रमेश भाई से मैं इतना कुछ सीखता हूँ. He is like a mentor and keep learning from him for so many years now. तो ऐसा नहीं है कि जो हमने बनाया है वही किसी को शेयर करना है. तो इनका as a part of community में आना, I really feel honored. And one day he calls and he tells, I want to become a volatility coach today. Wow. So, and it is all because of these games, my dear friends. And Varun, phenomenal, huh? Varun ka to, he is also doing, or I think, not to, किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ, पर ये तो word to word करता है. Beautiful, awesome, जोरदार तालियां वरुण के लिए भी. बहुत अच्छा, everything, and I think many more of us are doing it. But the whole idea is, from today, not once in a month, twice in a month. Ayappan, today, yesterday, he is doing Volatility 2.0, sitting at Bahrain. My dear friends, this is very, very interesting, and it becomes interesting for so many people. So, इस IIP के लिए कोई coins नहीं मिलेंगे आपको, but I'm sure श्रीकांत भाई, हाँ, भावेश के तो बहुत सारे रंग हैं. कहाँ है भाई? हाँ ये रहा. तो अभी वही बात हो रही थी. कुछ लोग सूट में वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग टी-शर्ट्स में बनाते हैं. Some people in some other format. I think his daughter has also started coming up. 3.5-year-old? She's 3.5-year-old, and it's very nice videos and IAPs also he's doing. But कुछ लोग कर रहे हैं games, कुछ लोग थोड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग at least कोशिश कर रहे हैं. The idea is more and more games used. Today we will launch, I think these 2 games in the evening are best suitable for college students and youth. But it is more of a communication skills, okay? तो उसके लिए we will just see and we will play. It's like round 1. और ये ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने देख लिया and you become an expert and you do it. Volatility games and asset allocation game you just do because everything is figure and all are coming. But this will be more of a skill-based game. Like how many of us have played Vision game? Vision game आप लोग नहीं कराते हैं. A very very powerful game. उसमें कोई LED नहीं है, हाँ? There is no LED, there is no PPT, there is no game. It's just an engagement. बहुत सारे organizations को people are paying Sonu Sharma 8.5 lakhs, so many speakers, so many lakhs of rupees. You do a vision game with all those corporates. It's the best motivational session, best thing to do. Everybody is engaged. If you have 200 people, 100 people, 50 people, everybody will be engaged. So let's see how much time. We are open till midnight today. So don't worry about it. आपकी और हमारी चाहत और इच्छा पर है कि हम लोग कितना क्या खेल सकते हैं. But today, no ज्ञान, only games. So are we ready? But after tea break, please ensure that you have your this tag. Huh? People are sitting outside. You can collect your kits and all. वो बैग को लाके यहाँ भी रख सकते हो. It's not that important, but this color code is very very important. Okay. So let's all welcome Shrikant Matrubhai. Okay, so namaste, happy afternoon. Yes. तो
always I start with this one, that is श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम. क्या है अभी जो भी है 3 days कंप्लीटली सुनो, सबका सुनो, इधर का उधर का, दोस्तों का, स्टेज पर है उनका, स्टेज पे जो बाहर है उनका सब सुनो, बाजू आजू वालों का सुनो. एंड जाने के बाद मननम करो कि कौन सा मुझे चाहिए, कौन सा मुझे नहीं चाहिए, फिल्टर करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच एवरीवन मिसेस इज निधिध्यासनम. यू हैव टू गो एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है? दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. तो दिस IAP थिंग वॉट एवर, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे इतना रेफरेंस आता है, आई डोंट नीड टू डू IAP. दैट्स द मोस्ट फूलिश थिंग. IAP वी डोंट डू टू गेट क्लाइंट्स, वी ऑल्सो टू डू टू बिल्ड आवर ब्रांड. ब्रांडिंग के लिए करना ही पड़ेगा, जस्ट टू गेट दैट ब्रांडिंग. तो many people were there in my office, they would have seen, मेरा ऑफिस में AMC का एक भी नहीं मिलेगा आपको. Even when you search, you don't find any AMC. My name is my brand there. Srikanth is enough. And people जब मुझे आते, when they come there, they are already sold out. मैं जो बोलता हूँ they will do. And some clients wait 6 months for me to meet me. So that's the thing, that's the brand you have to build. And that happens through IAP. क्योंकि जब IAP करेंगे, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप रोज रेडियो सिटी में कहीं है, हाउ डू यू कम ऑन रेडियो, हाउ डू कम ऑन TV. अरे यू डू द IAP, नो, बाई डिफॉल्ट इट गेट स्प्रेड. इसलिए IAP करना है. एंड IAP करने के लिए हु इज द अभी T20 चल रहा है ना, वर्ल्ड कप, एशिया कप चल रहा है. तो हु इज और इंडिया ओपनर जो बहुत ओनली स्टार्ट विद 6. यस्टरडे भी 6 से स्टार्ट किया था. हु इज दैट? अभिषेक शर्मा. तो हमारा VC में कौन है? दैट ऑफ कोर्स राहुल भाई. तो राहुल जिंदालिया, प्लीज वेलकम राहुल जी. तो विल हैव वन क्वेश्चन. या ओके, तो हिंदी चलेगा ना? या हिंदी दिल से आता है, दैट्स व्हाई. ओके राइट. तो राहुल भाई, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस व्हिच ऑन्ट एवरीवन, आप जाके गवर्नमेंट कंपनीज में करते हो, PSUs में करते हो. तो मैं PSU का एम्प्लॉय हूँ, मुझे ग्रेचुइटी आता है, मुझे पेंशन आता है, तो मुझे म्यूचुअल फंड क्यों चाहिए? आई डोंट नीड म्यूचुअल फंड. मुझे इतना गारंटीड पैसा आ रहा है. म्यूचुअल फंड तो ऊपर नीचे होता है, माइनस भी होता है, मुझे टेंशन नहीं चाहिए. वैसे भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, BP है. व्हाई शुड आई डू MF? So that's a very appropriate question. If you're getting a pension, why should you go for a mutual fund to a government employee? So सबको लगता है कि it's a tough nut to crack the government sector. It's a very easy segment. क्यों? प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा है वो रिटर्न खोजता है, राइट? गवर्नमेंट सेक्टर में जो बंदा है वो सेफ्टी खोजता है. आई डू नॉट हैव ए सिंगल क्लाइंट, मेरा एक भी क्लाइंट नहीं है जो पूछता है कि मेरा पोर्टफोलियो में रिटर्न कितना आया. मेरा क्लाइंट पूछता है कि मैंने जितना डाला उससे ज्यादा है कि कम. 80% debt is okay with him if I save taxes on this. So yesterday I was reading a book and उसमें एक कहानी था. जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में थी तो दिल्ली में बहुत कोबरा पाए जाते थे, बहुत सारे कोबरा. तो उन्होंने कोबरा को पकड़ने के लिए एक इनाम रख दिया. दैट इज फर्स्ट लेवल थिंकिंग, मेंटल मॉडल्स जिसको हम बोलते हैं. दैट इज फर्स्ट लेवल थिंकिंग एंड टेकिंग एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट द सेकेंड लेवल ऑपरेशंस. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल. ब्रिटिश सरकार ने कोबरा को पकड़ने के लिए इनाम रख दिया. हमारे भारत के छोटे छोटे गांव के लोग बड़े सीधे साधे लोग होते हैं. हमारे जीतलाल जी जैसे, कहाँ गए जीतलाल जी? हाँ, ऐसे सीधे साधे लोग हैं. बोले सरकार ने इनाम रखा तो चलो कोबरा पकड़ो. कोबरा खत्म हो गए तो ये गुप्ता जी आ गए, बोले चलो कोबरा पालते हैं. वो तो प्रॉब्लम. और दैट इज द टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड लेवल थिंकिंग. हमें लगा कि सरकारी एम्प्लॉय को नहीं है, हमने फर्स्ट लेवल सोचा और उसको रोक दिया. हमें लगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% आएगा, डेट म्यूचुअल फंड में 30 पैसा आएगा या 10 पैसा आएगा, तो हमने उसको छोड़ दिया. वो 30 पैसे में आप 100 करोड़ काम कर सकते हो ना. That's the second level thinking problem. So government sector is very easy. And to start with, private sector के किसी CFO का नंबर मिलेगा ऑनलाइन? मिलेगा? ओके, वेरी सागर. हम लोग परसों HAL में गए थे. यस, आप आइए इधर. हम लोग परसों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में गए थे, महारत्ना कंपनी. हम लोग के पास जो चीफ ऑफ एकेडमी था उसका नंबर था? नहीं, हम लोग ने, हाँ, वहां से हम लोग ने लिया था.
चीफ ऑफ एकेडमी का जो ट्रेनिंग एकेडमी का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जो डायरेक्टर एचआर है, उसका हमारे पास नंबर नहीं था। ऑनलाइन खोजा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एकेडमी के जो ऑपरेशंस हेड है उसका नंबर क्या है, उसके लैंडलाइन का नंबर मिला। उसके लैंडलाइन का नंबर मिला तो उसकी रिसेप्शन, गेट कीपर बड़ा बदमाश होता है, वो अंदर आने नहीं देता। अंदर अभी वापस जाके आओगे ना तो पहले मांगेगा टैग है कि नहीं। Yes. वो गेट कीपर को निकालना है ना, और गेट कीपर को क्या चाहिए, 100 का नोट। वो गेट कीपर को बोला, मैडम आई एम फ्रॉम दिल्ली। फ्लैट दिल्ली से है, कोई मिनिस्टर का बेटा होगा। फर्स्ट फ्लैट, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं सर से मिलने का है, मेरे को 3 मिनट का टाइम चाहिए, 5 मिनट नहीं चाहिए, 10 मिनट नहीं चाहिए, कितना मिनट चाहिए, 3 मिनट। मैं आपका ऑफिस के बाहर खड़ा हूं अभी, आप खाली सिक्योरिटी गेट को ये बोल दीजिए कि अंदर आने दे, राहुल और सागर और हर्ष खड़े हैं। उसके पास चॉइस नहीं छोड़ा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि ऑफिस में है या नहीं है। एंड आई गॉट एन एंट्री, आई वेटेड आउटसाइड हिज ऑफिस, सेकेंड लेवल, उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं। सो आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल आइडिया व्हाट वी डिड। नो ज्ञान, एकदम लाइव केस स्टडी है। आई वाज विथ हिम थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट लेवल, उसका ऑफिस तक पहुंच गए। अभी उसका जो नेक्स्ट अटेंडेंट है वो आया, लीस्ट इंटरेस्टेड। अरे कौन है तुम? मैं पीएसयू महारत्ना में सरकारी बाबू, तुम कौन है? लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं उसको अपना लैपटॉप खोल करके और क्रेडेंशियल्स दिखा रहा हूं, उसको लीस्ट इंटरेस्टेड। उतने में बॉस बाहर निकले, उतने में बॉस बाहर निकले। हाँ, अभी निशान से बात करना आसान है कि कनक से? बोलिए कनक भाई से, कनक भाई बोलिए। हाँ, क्यों? आदमी जितना बड़ा होता है उतना डाउन टू अर्थ। अभी बॉस से मिला, सर मैं इधर दिल्ली से आया हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। मिला कि नहीं मिला? मिले। That's how it works. Thank you. सो सिंपल एक चीज थी वहां पे। और जैसे वो बोले ना सरकारी बाबू, जो पीएसयू वाले महारत्ना के बंदे थे, वो जैसे ही गए रूम में वापस, तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, भाई चाय से किटली गर्म है। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जो राहुल ने क्रैक किया, जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरह से वो कनेक्शंस बना रहा था, निकाल रहा था, मैं पूरा दिन उसके साथ खाली इसके लिए रहा था। आई जस्ट वांटेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड कनेक्शंस, कैसे कहाँ से उसने किया। ही मेन चीज़ उसका प्लस पॉइंट भी है कि उसके पास क्रेडेंशियल्स है, वो ऑलरेडी बहुत सारे पीओसीज में काम कर चुका है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई वाज विद हिम। एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी राहुल। थैंक यू क्या, उसने मेरे को फीस दिया इसका। That's a very good question. That question will come. That's a very good question. मैं आता हूँ, क्वेश्चन मैं करता हूँ। नहीं तो आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, then you will give the answer. शैबाल भाई पूछ रहे हैं कि भाई तुमने अभी 50 आईआईपी कर लिया, 100 आईआईपी कर लिया, तो तुमको एंट्री आराम से मिल जाता है, तो कोई पहले टाइम कर रहा है तो उसको कैसे एंट्री मिलेगा? सीधी बात है, किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय का इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कराना जरूरी होता है या नहीं? हाँ कि ना? अरे कौन सा प्राइवेट, कॉग्निजेंट वाले अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की? तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करना जरूरी? हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए एक अलग से एकेडमी होना जरूरी है। अभी मैं अगर ट्रेनिंग हेड हूं, ध्यान से सुनिए, मैं ट्रेनिंग हेड हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए? ट्रेनर। कैसा ट्रेनर चाहिए? हाँ, वो क्या बोला? हाँ, जोर से बोलो। मैं पीएसयू का आदमी हूं, सरकारी आदमी, मेरे को ऐसा ट्रेनर चाहिए जो क्या करेगा? फ्री का। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या? देखो सरकारी महकमे में यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अभी 40 मिनट का आईआईपी में तुम अगर 20 मिनट अपना बात करेगा, इफ इट इन अ 40 मिनट आईआईपी यू टॉक अबाउट 20 मिनट्स फॉर यू, विल यू गेट द सेकंड अपॉर्चुनिटी? दैट्स इट। सो किसको टारगेट करना है? पीएसयू का ट्रेनिंग एकेडमी को। एनएचपीसी का ट्रेनिंग एकेडमी फरीदाबाद में है, एनटीपीसी का गाजियाबाद में है, एचएएल का यहाँ बैंगलोर में है, भारत डायनामिक्स का हैदराबाद में है। आपके घर के 15 किलोमीटर के अंदर एक सरकारी कंपनी है। वो सरकारी कंपनी में घुसने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, सिर्फ अच्छा साफ सुथरा कपड़ा चाहिए बस। और अगर जैकेट डाल लिया तो जो सिक्योरिटी पे पियोन खड़ा ना, उसको लगेगा कोई बॉस ही है। अच्छा, उसके अंदर जाने का एक साधारण तरीका बताता हूं। आप सबके पास अपना गाड़ी है? किसी के पास अपना गाड़ी नहीं है? एनीबडी हु डज नॉट हैव हिज कार? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो तेरे को पहले एंट्री मिलेगा। क्यों? तुम उबर ब्लैक करके जाएगा तो ये शॉफर ड्रिवन हो गया। ये उबर ब्लैक करके जाएगा शॉफर ड्रिवन, तो पियोन रोकेगा कि नहीं? When I go to PSU, I do not drive my car. Uber Black charges you 1000 instead of 500.
but that gets you an entry without stopping at the security gate. रिसेप्शन पे अगर पहुंच गए, मैडम जिस शहर में हो, दिल्ली में हूं तो मैं बॉम्बे से आया हूं, और बॉम्बे में हूं तो दिल्ली से आया हूं. अरे क्या करें, जब तक नहीं है तो बनाना पड़ता है ना. इफ यू डोंट हैव इट, फेक इट. काम होने से मतलब है ना. उसको रिसेप्शन को इतना बोला कि एचआर वाले से बनना, एचआर वाले से मिलना है. एक किसी भी कंपनी में सबसे थका हुआ आदमी कौन होता है? रिसेप्शन वाले को क्या मतलब, जाओ उधर सेकंड फ्लोर पे जाके मिल के आओ. वो आप वो टेबल पे पहुंच गए, उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स इट. अभी जो भी बोल रहे हैं ना, वॉट एवर राहुल इज टेलिंग, इट्स ऑल एक्शनेबल आइडियाज. तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट. आप अभी ताले मारेंगे, बाद में भूल जाएंगे. डोंट डू दैट. वो मत कीजिए, ठीक है? तो राहुल भाई बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है. यू हैव सीन. तो आई रिमेंबर वन ऑफ योर स्टोरीज, जो घोड़े का आईपीएल जैसा हुआ था, या फिर डॉक्टर वो कुछ दवाई खाता है, दैट वन. तो देर आर सो मेनी स्टोरीज. ऐसा एक स्टोरी बताइए हम लोगों को जो बहुत इफेक्टिव था. मतलब वो स्टोरी सुनते ही सब लोग ने कहा, अरे हाँ मुझे भी इन्वेस्ट करना है. सो दैट दे कैन, मे बी इफ यू अलाउ देम, दे विल आल्सो यूज. मे बी दैट आईपीएल आल्सो. Oh, fantastic. Let's talk about Akshay Patra. So let me do an IAP for you guys. आप लिख लेना प्लीज, इट्स वेरी यूजफुल. नहीं, मेरा नंबर फ्री में अवेलेबल है. हाँ, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. अभी तक जो बताया वो भी साधारण, आगे जो बताऊंगा वो भी साधारण. यहां से चीर के यहां तक मैं बात लेके जाऊंगा तुम्हारे, और तुम मेरे को भूलो नहीं, इसके लिए मुझे रखी है. बराबर बराबर, हाँ के ना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना भट्ट साहब, आपको नहीं, आपको. हाँ हाँ, पहचाने कि नहीं? हाँ, देखिए, दिस इज हाउ आई कनेक्टेड विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. विल ही रिमेंबर मी? विल ही रिमेंबर मी? यस सर, यू विल रिमेंबर मी. सो आई हैव मेड वन क्लाइंट. आई हैव मेड वन क्लाइंट. आईएपी में कितने लोग हैं? आईएपी में कितने लोग हैं? फर्स्ट लेवल थिंकिंग हमें यह बोलता है कि आईएपी में है तो मेरे को सबको टारगेट करना है. नहीं 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 नहीं, मेरे को एक को टारगेट करना है. ओनली वन, ओनली वन. और मैंने उसको टारगेट किया. क्या नाम आपका बॉस? जीएन घोष. अरे बंगाली बाबू है. आई एम फ्रॉम कैलकाटा. नाउ आई हैव गॉट वन क्लाइंट, और घोष बाबू के बगल में जो बैठे हैं ना, वो घोष बाबू उनको मेरा क्लाइंट बनाएंगे. एक बार आईआईपी में मैं राजेश बंसल साहब को लेके गया था, और एक बार वरुण को लेके गया था. तो ये लोग जबरदस्त मास्टर स्टोरी टेलर है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्शन बताते हैं कि आज से 100 रुपये या 1000 रुपये का एसआईपी डालेगा तो 15 साल में 1 करोड़ रुपया बनेगा. इससे कोई क्लाइंट आता है? नहीं. तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया. जब पांडव वनवास से लौटे, व्हेन द पांडवास रिटर्न फ्रॉम एक्सिल, जब पांडव वनवास से लौटे तो उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य के लिए संधि प्रस्ताव, श्री कृष्ण उनको लेकर के जाते हैं. लेकिन जब पांडव वनवास में गए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको. जब पांडव वनवास के लिए गए तो उसके पहले वो चक्रवर्ती राजा थे, है कि नहीं? अभी जब राजा वनवास के लिए जा रहा है, उसको सबको जानते हैं, तो उसके पास मिलने के लिए लोग आते थे, लेकिन वो लोगों को खिलाने पिलाने के लिए फल फूल उसके पास नहीं थे. तो उसने सूर्यदेव का पूजा किया, सूर्यदेव ने का आह्वान किया. सूर्यदेव ने उनको कहा कि ये लो एक अक्षय पात्र. तो सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया, और क्या कहा, ध्यान से सुनिए. सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया और कहा कि इससे भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले. ये है आपका रिटायरमेंट का वो प्लान जिससे रिटायर होने के बाद आप हर महीने खाते रहिए, लेकिन ये पात्र में से भोजन कभी खत्म नहीं होगा. एंड इट इज सोल्ड. After this, you explain whatever you want to explain, SWP or equity or debt or falana dimkana, but I have already caught your audience, right? I have already made you or forced you to listen the concept. Once I have forced you to listen the concept, you got it. Another story, I don't know, I am taking more time or what? Huh? हाँ, देखो मैंने बोला था कि रोकना पड़ेगा. हाँ, IAPs, we do only IAPs.
ओके, सो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, ये वो फलाना डिमकाना, वो सब के बाद में एक ही सवाल आता है कि तुमसे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, डायरेक्ट कमीशन फलाना डिमकाना ये वो। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने अपना आईआईपी में एक जबरदस्त मॉडल बनाया, म्यूचुअल फंड का लिस्ट निकाला, 15 अच्छे म्यूचुअल फंड का लिस्ट निकाल के दे दिया। फिर मैंने बोला कि 15 म्यूचुअल फंड के नाम तो आपको मिंट पे, ईटी मनी पे, सब जगह मिलते हैं। फिर उसको लगा कि नहीं 15 म्यूचुअल फंड तो फ्री में मिलते हैं, तो मैं राहुल को क्यों सुनूं। तो एक लेवल और आगे गया, बोला 15 म्यूचुअल फंड में से मैंने 3 म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बनाया, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक गोल्ड फंड। ये कॉम्बिनेशन पिछले 15 साल से लगातार मार्केट को बीट कर रहा है। तो एक लेवल आगे, अभी उसको समझ में आया कि इसने कॉम्बिनेशन भी बता दिया, अभी राहुल का क्या जरूरत। फिर मैंने बोला कि जब भी कॉम्बिनेशन लिया तो उसमें एक लार्ज कैप, घोड़ा नंबर 1, हॉर्स 1, मिड कैप, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स। अभी 4 घोड़े पे आपने रेस में पैसा लगाया, कौन सा घोड़ा जीतेगा, चारों या कोई एक? कोई एक ही जीतेगा ना। तो अगर कोई एक जीतेगा तो बाकी 3 हारेंगे ना। और आप क्या करते हो, अभी पहला रेस हुआ है, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितने साल की रेस है, 10 साल की। पहली रेस हुई है, पहली रेस में जो पहला घोड़ा जीता वो तो अभी थक गया, अभी दूसरी रेस में कौन जीतेगा, दूसरी रेस में कौन जीतेगा। हाँ, अब इसके बाद स्टोरी बताया कि आपके पास 3 म्यूचुअल फंड है, एक में 13%, एक में 15%, एक में 18% और चौथे वाले में -2%। आप बोलते हो भाई राहुल जिसमें माइनस है उसको बेच दो। मैं बोलता हूं ये माइनस वाले ने अभी अपना एनर्जी कंज्यूम नहीं किया है, अभी इस पे पैसा लगाने का। अरे इतना एनर्जी, थोड़ा और क्लैप मारो यार। तो हम सब क्या सोच रहे थे, हम सब सोच रहे थे पीएसयू में घुसने के लिए बड़ा मुझ चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, दैट्स ऑल। बड़ा दिल चाहिए, थोड़ा बड़ा आइडिया चाहिए। ऑफ कोर्स वी विल लव टू लिसन टू यू मोर, बट अभी बहुत पीएसयू में घुसने के लिए खाली एक शॉफर चाहिए, शॉफर चाहिए। यस, वो शॉफर आपको भाड़े पे मिलता है एक दिन में। राइट। तो अभी हमारा बहुत और T20 प्लेयर्स है, अभिषेक शर्मा के बाद कौन कौन है सब देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच राहुल। Thank you. वन मोर राउंड ऑफ बिग अप्लॉज। Hey, really happy to see Apurva Gandhi after 4-5 years. Really good, sir. Great. तो one of the next, हमारा जो next T20 sixer है, striker है, is one of them who motivated me to go and do corporate IAPs. तो देखिए अगर वो मुझे motivate कर रहा है तो how good he should be, isn't it? So please welcome Saurav Jain. Thank you, sir. So सौरभ भाई ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, बट आई नो कि सौरभ जी का एक खासियत यह है कि whenever he does corporate IAP, he makes sure that people book for that 1-to-1 slot, 1-to-1 free देते हैं and people book for that. But how do you ensure that they just don't book but actually come and attend the slot, and what do you talk there? Perfect. So again, thank you all. Thank you friends for all of you being here, and thank you everybody for giving us the opportunity to come and talk to all of you. So I think I'll just quickly brief about ये journey कहाँ से start हुआ था. I think ये journey हमारा start हुआ था 2019-20 with कनक जी. I think we started at that point of time. So हम बहुत छोटा IAPs करते थे उस time कैलकाटा में, and कभी कोई कंपनी को अप्रोच किया, जैसा राहुल भाई ने कहा कि चलो अप्रोच किया तो कोई एचआर है, फ्रेंड है, उसको अप्रोच किया यार सेशन करना है, तो एचआर बोलता है यार ऐसे तो अलाउड नहीं है बोर्ड रूम में हम सेशन, तो एक काम कर कैफेटेरिया में स्टॉल लगा ले। हमने कहा चलो ठीक है। तो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वी यूज्ड टू स्टैंड देयर फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 5 इन द कैफेटेरिया, और एक छोटा सा स्टॉल लगा के, एंड देन पीपल यूज्ड टू टर्न, और वहाँ पे भी हम गेम्स के थ्रू उनको एंगेज करते थे। वो आपका बुल एंड बेयर वाला गेम्स जो कनक भैया ने उस समय बनाया था, और भी टी पजल गेम्स एंड ऑल। तो वो गेम्स के थ्रू एक क्राउड आ जाता था आपके स्टॉल पर, अरे क्या हो रहा है, ये मेरे से पजल नहीं बन रहा है, पिरामिड वाला नहीं बन रहा है, एंड देन पीपल यूज्ड टू स्टार्ट एंगेजिंग विद अस, ओके व्हाट डू यू डू, वी आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, हम आपका 1-to-1 प्लान बनाएंगे। सो एंटायर इंटेंट वाज देयर इनिशियली, वी स्टार्टेड कि चलो वहाँ से लोगों को ऑनबोर्ड किया, उनसे बातें करना चालू की, फिर उसके बाद उनको अपना कनेक्ट दिया कि भाई हम आपसे कनेक्ट करके, चाहे आप जूम पे मिलिए, चाहे जैसे भी आपको 1-to-1 फिजिकली मिलना है, यू कम एंड यू डू 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फिर वहाँ से वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। आई विल टेल वन स्टोरी। टाइटन में हमने स्टार्ट किया था,
So again, one of my friend in Bangalore, he was the HR. वो बोले यार तू कलकत्ता का बंदा है, तेरे को मैं बैंगलोर तो अभी क्या बुलाऊं, तो एक काम कर, मेरे कलकत्ता में जितने भी रिटेल स्टोर्स है टाइटन के, टाइटन आई प्लस, टाइटन वॉचेस, यू डू सेशंस आउट देयर. So हमने वहाँ पर सेशन किया, and then from there, you know, the feedback which was collected was so good. It went to corporate office Bangalore, and then फिर हम 2021 या 22 में we were invited in Bangalore. टाइटन का जो हेड ऑफिस है यहाँ पर हमको बुलाया गया. We met the HR head, we met the CFO of Titan, and उनके साथ बैठ के उन्होंने हमको पूरा एक रोड मैप बताया कि हमारी कंपनी की इश्यूज ये है कि भाई आज we all know, just to name that, you know, certain companies are there, तो उनके कुछ internal issues थे employees के in terms of like they get so much of easy loan. So they said easy loan has become a problem for some of the employees, how you can work that out. तो हमको pain point समझ में आया corporate का. When you go and talk to corporate, you talk to the HR की you want to do address, don't talk and tell मेरे को एक financial wellness session करना है, I want to do a session on investments, they are not interested. You tell them I want to talk about their tax planning. You tell them I want to talk about their loan EMI planning, how they can manage their investments and balance their savings. आप investments का word ही try and avoid करो, honestly. Because और employees भी तब आते हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम online जब sessions करते हैं Zoom पे, highest attendance होता है employees का जब हम session करते हैं tax planning के ऊपर. When we do session on investment planning, हो सकता है 80-100 employee आए, tax planning में जब हम session करते हैं, minimum 150-200 employees Zoom पे आते हैं. And very hardly, like I'm completely, my model is reverse of Rahul Bhai. He does a lot of physical program. I do only online programs. 90% of my programs are online. I'll give you one scenario. एक बार ऐसा था, हम लोग ENY, KPMG के लिए हमारा एक session हुआ था. Again, through one of my friend, he was the HR, उसने मेरे को number दिया. Tax planning का session में, can you guess कितने employees आए थे? Anybody? Any guesses? Zoom पे online session था. 500? 1000? 99 ऑडियंस कोई भी नहीं. अरे नहीं, ऐसा नहीं सर, एम्प्लॉय सेंट्रिक है. 1800 people attended that Zoom call which was been organized by KPMG. I myself was shocked at the number, boss. मतलब लोगों को, and फिर मेरे को समझ में आया कि boss, don't talk about investments, simply you talk about tax planning, renting versus EMI. ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जिसको लेके लोग कंफ्यूज्ड है and they don't know what to do. वहाँ से फिर आप अपना LinkedIn कनेक्ट दे दो, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में अगेन एक प्रॉब्लम है, आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं शेयर कर सकते हो. दे डोंट प्रेफर दैट. सो आप सिंपल है, दे अलाउ यू टू शेयर योर LinkedIn प्रोफाइल. वो बोलते हैं आप LinkedIn का अपना लिंक डालो, लेट द एम्प्लॉय कनेक्ट ऑन योर LinkedIn प्रोफाइल. एंड लास्ट 3 years में यू वोंट बिलीव, आई हैव जस्ट वर्कड ऑन वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म LinkedIn. टुडे आई हैव 7,000 प्लस कनेक्शन ऑन LinkedIn. इट इज फुल्ली ऑप्टिमाइज. आप गूगल में जाके सिर्फ सौरभ जैन डालो, आपको LinkedIn का प्रोफाइल मेरा सबसे पहले आता है. So it is not one day exercise, it took 3 years. So what I do, बोलते हैं ना, आप एक फिल्टर बनाओ, आप एक लूप बनाओ, आप सेशंस करो, सेशंस करके लोगों को अच्छा लगता है, आप उनको अपना LinkedIn का प्रोफाइल दो, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. जैसे ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, वहाँ पे चैट पे आप उनको एक 1-to-1 का लिंक दे दो. That, you know, thank you for attending the session. This is my Calendly link. Kindly block your calendar for free 30 minutes free consultation. So that's the entire loop we started. एंड उसके थ्रू करते करते फिर आपने जहाँ सेशन किया उसका एक फोटो LinkedIn में डाल दिया, दूसरे HR ने देखा, वो फिर आपको कहीं ना कहीं रीच आउट करता है दैट वी वांटेड टू डू सम सेशन. सो दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल प्लेड अराउंड. सो अगेन इट्स अ प्रोसेस, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. टुडे इफ यू विल स्टार्ट, इट विल टेक अराउंड 2 years 3 years टू बिल्ड दैट, बट इवेंचुअली वो बिल्ड होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होता है. सो दैट्स द प्रोसेस, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड डिड द थिंग्स अराउंड. थैंक यू. ओके, तो आई थिंक मेरा सेकंड क्वेश्चन भी उसमें हो गया, बट Yeah. फिर भी थर्ड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि व्हेन वी डू द सेशंस, नो व्हाटएवर इज, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, लोग बैठते नहीं है. जूम में तो ऑन है, करेक्ट. बट आर दे रियली लिसनिंग, हमको तो पता नहीं है. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे आर लिसनिंग, नंबर 1. Yeah. एंड फर्स्ट थिंग यू टोल्ड अबाउट द टॉपिक. Yeah. तो टॉपिक का एक्चुअल टाइटल कैसे होना चाहिए? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर यूज, आपने देखा होगा मेरा टॉपिक का टाइटल होता है आउट ऑफ सिलेबस या आफ्टर द इंटरवल या बिफोर द क्लाइमैक्स. इस तरह का मेरा माई टॉपिक्स आर लाइक दैट. तो आपका कैसे होता है? सो दैट See, it's very simple. I keep it more, very, very simple and very centric for the employee. As I said, tax planning. How to optimize your tax and, increase your overall cash flow. And again, is your salary, is take-home salary, is your, I would say, your income. So again, is salary your net income?
that these are certain topics, and then I try to hook around the people that do you feel, and then this first question which I ask when the people do come, and in online session 80% switch their camera off, but still you need to be very very receptive, confident, as if कि हाँ सब लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी वो एनर्जी होनी चाहिए. और मैं पहला क्वेश्चन यही पूछता, इज योर सैलरी योर इनकम? 90 नेट इनकम 90% लोग बोलते हैं यस. सो आई टेल देम दिट इज नॉट योर इनकम, दिस इज जस्ट योर कैश इनफ्लो. अगर आपका सैलरी इनकम है, 10 साल से आप कमा रहे हैं, तो आपका तो 1 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ हो जाना चाहिए. व्हाट इज योर नेटवर्थ? So, and then, people started, no, it's not that. And then they say, no, this is correct. And then, you try and grab the attention of the audience that your salary is just your net cash flow, cash inflow. What goes out when you spend is outflow. What is left over, this is your net income. So then you analyze, if you have worked for 10 years, what is your overall net income? What is the salary which you have earned? And then, so that is where people start, get connected to you. And small things, like when we do session on tax planning, we simply, talk about the a concept of HUF. I know HUF, कितने लोग यहाँ सबको पता है हम लोगों को, but most of the salaried people, they don't know the concept of HUF. And lot of them who have, some amount lying in fixed deposit, some of the rental income, etc. आप उनको एक छोटा सा भी ट्रिक बता दो ना, कि आप HUF खोल के ये सारा इनकम को वहाँ डाइवर्ट कर दो और आपका 30% टैक्स नहीं लगेगा. They really become very happy. उनको कुछ मिल गया आपसे. It's not that you are just asking them come and do investments. You have actually given them some mantra, and then they feel हाँ ये बंदा knowledgeable है. Let's reach out to him for more problems, more solutions, etc. So small problems, try and identify. आप sessions करते हो, उसमें ज़्यादा time आप ये real estate versus buying versus renting a house, इस type के जो concepts है, जहाँ पे एक salaried employee या एक corporate employee जूझ रहा है, उसको आप अगर एड्रेस करते हो ना, दे फील दैट पर्टिकुलर इश्यूज, दैट ओके दिस हाउ दिस कैन बी आइडेंटिफाइड, हाउ दिस कैन बी रेक्टिफाइड. सो दिस वाज द व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? एजुकेशन मतलब कैसे बैठते हैं, ऑल दोस थिंग्स. कैसे टॉपिक का क्या होता है, एजुकेशन मतलब विल दे सिट एक्चुअली? या सो दे एक्चुअली सिट. आपको लगता है कि वो नहीं बैठते, बट एक्चुअली वो सुनते हैं. वी ऑल नो, सी 3 to 4 is an off an hour. Sometimes they keep doing. So how to engage them? You keep asking questions. After every 2 slides, you keep asking questions, and you don't run the PPT throughout your 40 minutes. That's the most boring thing, and that's the worst thing which anybody should do. Hardly you should have 5 to 7 slides. उसके बाद आप simple Excel calculators खोलो अपना, and Excel calculators को आप use करो. Compounding का example दिया आपने, SWP का example ले लो, SIPs का. You create 4-5 scenarios, like simple inflation. You simply ask them, rule of 72. बॉस यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 80% लोगों को रूल ऑफ 72 नहीं पता. आप सिंपल वो भी बताते हैं ना, मतलब उनका लाइट, ट्यूबलाइट जो भी बोल दो सब ऑन हो जाता है. दे रियली फील वेरी एक्टिवेटेड. सिंपली आस्क देम, टुडे इफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंस इज 50,000, आज से 7 साल बाद कितना होगा? Lot of people, they don't know, they start calculating. Ask questions like rule of 72. Your entire intent would be for audience who is there, what is his takeaway? वो क्या सीख के जा रहा है? Is he learning some formulas? Is he learning some Excel calculators? And then again, what he said there, how do you reach out? Excel calculators are again very important. So what I do, most of the things I do on Excel, अब वो जैसे ही सेशन खत्म होता है सब वो Excel मांगते हैं कि ये एक्सेल हमको चाहिए, कि ये इतना सारा कैलकुलेटर्स है. उसमें फर्स्ट पेज में, फर्स्ट शीट में रूल ऑफ 72, सेकंड में कंपाउंडिंग, थर्ड में सिप कैलकुलेटर, फोर्थ में SW. एवरीबडी आस्क फॉर इट. सो अगेन in the Excel, definitely my email ID, mobile number, everything is there. So I say, okay, I'll share it with your HR, and then you reach out to me, or you connect with me over LinkedIn, I'll share it to you separately. So this is how you create that entire loop without sharing your mobile number, without sharing your email ID, and then, reach out and you talk to different companies and reach out to the employees. So try and reach and hit their pain point area rather than, we trying and sell them something that, okay, this is my offering, is this is why I am good at it. They don't want to know what you are good at it. They want it if you are able to identify and hit their, concern pointers, and you take that up. Perfect. Any questions? Anybody? Yeah. 1-to-1 अगर हम लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो सुन रहा है, लेकिन जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, जूम में जाते हैं, एट दैट टाइम ये जो श्रीकांत भाई ने क्वेश्चन किया कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि सामने किसी को दिखता नहीं है, मैं कैमरे की तरफ देख के कैसे बात करूँ, वो कैसे आप See, वो आएगा. Honestly, initially I used to feel people are not there, but imagine अगर 300 लोग ज्वाइन किए हैं, 200 लोग भी जूम पे ज्वाइन किए, 100 आदमी तो सुन रहा है, 25 आदमी तो सुन रहा है,
So 25 में से even if 5 comes to is good only. Now in 1 hour, if you can get 5 leads, sitting in your own office, in your AC room, in your comfort area, what else do you want? So yeah, that is a challenge, as you said, but again, that confidence will come eventually. Even if 1 or 2% have their camera open, it's fine. But even if not, all others are not there, it's absolutely fine. You have to deliver session. That's why I'm trying, you try and hook them in the chat. Your entire focus not should be on the video, but on the chat. Keep asking them questions, and you see certain companies, जब आप जैसे ही पहला क्वेश्चन पूछते हो ना, आप देखते हो 15, 20, 30, 40, 50 चैट आ जाता है. वो आते ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा. एंड कई कंपनीज में आप जाते हो, पूछते हो, एक सिंपल क्वेश्चन का भी लोग आंसर देने से डरते हैं. Like we were doing one session in Kaya. Yeah, done. Just one example. We are doing one session in Kaya Clinic. उनके सारे डॉक्टर्स के साथ करे, तो उनको नॉलेज नहीं था, तो मेरे को 1 घंटा टानना इतना पेनफुल हो गया. दे वर नॉट आंसरिंग टू एनी क्वेश्चन, सारा कैमरा ऑफ है. बट some sessions will be very good, some sessions will be at par, but that's fine. Absolutely, you can take it up. नहीं Okay. he is here for 3 days. 3 Yeah. दिन इधर ही रहेंगे. आपको जो पूछना है आराम से बाद में पूछिए. अभी हमारा बहुत बैट्समैन है, उनको भी पूछ लेंगे. ठीक है? Yeah, yeah, A big round of 100%. applause. Perfect. Thank you everybody. Thank you. Yeah, Girish. तो टिल नाउ यू आर लिसनिंग के राहुल भाई कैसे बात कर रहे थे स्टोरीज से एंड दिस वन, एंड देन सौरभ बोल रहे थे कि जूम में कैसे. अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू सिट फॉर 1 hour विदाउट एनी पीपीटी, हाउ विल इट बी? बट हियर इज ए मास्टर who does sessions for corporates without PPT. तो इट्स ए सरप्राइज. हाउ डू यू कीप देम एंगेज्ड? मतलब हाउ डू यू मेक श्योर दे डोंट स्लीप? So first of all, thank you. My largest duration of the program is not 1 hour. Any guess how much the largest day, number of days or hours? 3 hours? 2 days? 3 days? My largest was 4.5 days. 4.5 days. And the entire program, it's a 6-digit paid program. And the entire program was purely engaging and interactive. So how many of you are interested to know the 3-step formula, how you can, people will ask you, bhai kitna loge? How many of you are interested that? Right? So the first formula, again, to start with is that, be in their story. Be in their story. आप जो भी बात कर रहे हो, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भाई ये मेरी बात कर रहा है. The first thing, either you meet HR, either you meet the participants, the audience जो भी है, उनका पहला प्रॉब्लम आपको ये जानना है कि उनको लगे कि भाई ये मेरी कहानी कह रहा है. Number 1. Number 2, what is the problem scenarios? मतलब उस प्रॉब्लम के पीछे एक कहानी होनी चाहिए. राहुल has shared the stories, right? तो आपने उनकी सिचुएशन जान ली, उस सिचुएशन के साथ स्टोरी को कनेक्ट करना है, राइट? और उस स्टोरी में उनकी प्रॉब्लम दिखनी चाहिए. और तीसरा थिंग, उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है, और उस सॉल्यूशंस को आपको 2 चीजों से बांटना है. नंबर 1, फैक्ट, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ बोल बच्चन है, राइट? तो फैक्ट होने चाहिए. तो आपके क्लाइंट्स के कोई भी डेटाज लेके आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जो फैक्ट्स सामने है, और उस फैक्ट के साथ स्टोरी को आपको कनेक्ट करना चाहिए. यानी पहले आपने उसकी स्टोरी में आप खुद आ गए. नंबर 2, you have shown the entire scenario of the problem, क्या क्या प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दैट यू हैव ऑल्सो गिवन द फैक्ट विच प्रूव दैट कि आप जो कह रहे हो इज नॉट जस्ट ओनली ऑन थियरिटिकल एस्पेक्ट, या गूगल में कहीं लेके आपने बताया नहीं है. एंड स्टोरीज क्यों स्टोरीज कहनी चाहिए? ऑफ कोर्स राहुल ने स्टोरीज बताई थी, एंड इफ सौरभ भाई ने भी. आई वुड लाइक टू थैंक सौरभ भाई. आई थिंक आई लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग टाइटन के साथ जब प्रोग्राम हुआ था. थैंक यू सो मच. तालियां बजा सकते हैं अगेन. So I think I had an opportunity to do a session with Girish, so I was invited in Titan, and उनको चाहिए था एक तमिल speaker, so I caught hold of Girish. Let me tell you, after कनक भाई, अगर किसी के IAP में energy है, and Rahul, I think that is Girish. Means the HR told me I got two contrasting. One who is very, very activated, and you are very soft spoken, and he is, very, very charged and activated speaker. Superb, Thank you so superb. much. तो यही है. तो आपका जो भी स्टोरी जो आप बात कर रहे हो, इट शुड बी फैक्ट एंड स्टोरी ड्रिवन. सो दैट्स हाउ माय एंटायर प्रोग्राम इज दैट. मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ, जस्ट वहीं से स्टोरी उठाता हूँ
और वहीं पे वापस दे देता हूँ तो because अभी जस्ट सौरभ बता रहा था ना, व्हाई डोंट वी डू वन एक्सरसाइज हियर, प्रैक्टिकल. a practical exam. Okay, All of fine. you become audience. So quickly, I want that. What is that one thing stopping you to charge a fee for your program? Quickly, what is that one thing? Quickly, आप बताइए. Roadblock क्या है? Sorry? कौन पैसा देके कौन आएगा? नंबर 2. सोचा ही नहीं है आपने कभी. नंबर 3. हाँ? फ्री में जाते हैं तो भी नहीं बुलाते हैं, पैसा देके कैसे बुलाएं? नंबर ओके राइट. तो पहला क्वेश्चन क्या था, यहां से आया था? दोनों सेम ही हैं, राइट. सर आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पेड करके कितना प्रोग्राम अटेंड किया है आपने? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो हम बोल रहे हैं ना, अगर हमने वो किया नहीं है ना, तो उसमें वो कन्विक्शंस नहीं होता है. And my highest, and how this has changed my conviction to charge fee, and that too till 6 digit, I have paid 6 digit fee for a program. सर लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने पहले कभी दिया है? अगर आपने दिया ही नहीं है तो वापस आप, क्योंकि आप बोल तो लोगे लेकिन दिमाग कहेगा भाई कोई देगा क्या. द सेकेंड क्वेश्चन, सर सेकेंड क्वेश्चन क्या था? आई थिंक ये 2 सा एक्चुअल एंगेजमेंट. एंगेजमेंट का वही 3 फॉर्मूला है, उनकी स्टोरी में आप मिल जाओ. हाँ ओके, स्टोरी में उनका मिलना है. ओके कोई भी. ओके आपने एम्प्लॉय का नॉर्मल चैलेंज सुना होगा. 1 तारीख को सैलरी आ रही है और 5 तारीख को खत्म हो रही है और 10 तारीख को बीबी का ताना चालू हो जाता है. अगर मान लीजिए मैं आपके पास कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या आएंगे? आप मेरे शू में रह के देखिए, पता चलेगा. आप यहाँ पे खड़े रह के बात कर रहे हो, लेकिन 1 तारीख को सैलरी आती है, इतने खर्चे मैनेज करना है, टैक्स पे करना है, फाइनली कुछ मिलता नहीं है, राइट? सर आपके साथ यही हो रहा है. अगर मान लो मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स में अगर आपको प्रूव करूं कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप इमीडिएटली एक्शन लोगे? डेफिनेटली लेंगे. तो अभी आपके पास पैसा नहीं है, एज यूजुअल 1 तारीख को आ रहा है, 5 तारीख को जा रहा है. ओके, ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स इन योर ऑफिस, आप बाहर जाते हो, ब्रेक लेने में जाते हो, राइट? यू स्पेंड चाय पीने के लिए. चाय पीते हो कि साथ में प्लस नहीं, चाय की बात करते हैं अभी. चाय के साथ प्लस, चाय के साथ प्लस होता है. ओके सो कितने ओकेशन जाते हो फुल डे में? 2 बार. कितना कॉस्ट होता है? 50 रुपीज, यानी 100 रुपया, राइट? और महीने का कैलकुलेशन करूं, 3000 रुपये. ओके फाइन. नाउ ये 3000 रुपये आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? कभी सोचा नहीं है ना, राइट? सो आपके कुछ गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं लाइफ में? सेकंड शादी के. उसके अलावा जो आपको सोने नहीं दे रहा है, मान लो. नहीं, मतलब कहने का मतलब आपको सोने नहीं दे रहा है, ऐसा कोई गोल है जो आपको सोने नहीं दे रहा है? खुद का बंगलो बनाना है. खुद का बंगलो. अगर नहीं बनाया तो क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं बना, व्हाट हैपेंस? चलेगा? नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? अभी छत लीक हो रहा है, नहीं होगा. तो छत लीक हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. वाइट में जो भी है करेंगे, वाइट में जो भी लीगली जो भी है करेंगे, राइट. एक तरफ ये आप 3000 रुपये रखिए और दूसरी तरफ ये छत को रखिए. अगर छत नहीं है तो प्रॉब्ली आप तो पूरे दिन काम करने जा रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले पक्का तकलीफ में रहेंगे, राइट? आपके बिटिया हैं, बच्चे हैं, प्रॉब्लम में रहेंगे. तो जब भी आप 3000 रुपये चाय पीने जाते हो, एक बार सोच लेना कि ये चाय मैं पी रहा हूँ, अगर ये चाय नहीं पीऊंगा ना, मेरी छत बन जाएगी, या अदर साइड मैं ये चाय पी सकता हूँ. ऑप्शन आपके साथ में है, तो आप कौन सा डिसीजन लेना चाहेंगे? चाय कट कर देंगे. चाय कटना पड़ेगा. मेरे 99 प्रोग्राम में मैं पहला चैलेंजेस, 99% प्रोग्राम में मेरा पहला चैलेंजेस यही रहता है. जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको अभी पूछा था ना, जैसे सिमिलर वे पे पूछता हूँ और पूरे प्रॉब्लम को एक पीपीटी में नोट कर लेता हूँ, साइड में नोट कर देता हूँ और कह देता हूँ अगर मैं पूरा दिन में अगर ये प्रॉब्लम का जवाब नहीं दिया हो ना, दरवाजा बंद कर लेना, आपको जो करना है कर लेना. सो दैट्स द होल प्रॉब्लम. और अपने पास जवाब है. हम लोग कई बार क्या है, we wanted to make the session interesting, but थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए. डोंट मेक द सेशन इंटरेस्टिंग, मेक सेशन इंटरेस्टेड. सामने वाला इंटरेस्टेड है क्या उस चीज को जानने के लिए? इंटरेस्टिंग नहीं है. अपने पास बहुत डेटा है, नॉलेज है, लेकिन उसको वो नॉलेज की जरूरत नहीं है. यस यस सर.
नहीं, मेरा सेलेक्टिव कॉर्पोरेट है और पहली मेरी कंडीशंस है, आई चार्ज ए फी टू देम। अपने पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, डन। हाँ, नहीं कैश फ्लो में वही आपके पास भी पैसा नहीं है, राइट? आप आपके पास पैसा है लेकिन आप उस पैसे को सही जगह पे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने सबको बता दी ना, अपनी गोल्स लिस्ट लिखने के लिए बोलता हूँ। कोई बोलता है कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अगर वो नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? बोलेगा चलेगा, नहीं है तो बाइक में चले जाएंगे, तो वो रियल गोल नहीं है। दैट मीन्स दैट इज नॉट समथिंग रियली योर इमोशनल गोल। गिरीश भाई, डन, थैंक यू, यस, a big round of applause to गिरीश भाई। थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स मेरे मैक्सिमम प्रोग्राम में वॉलेटिलिटी गेम है। वन थिंग जो 10 मिनट का इक्विटी का वीडियो है ना, कनक भाई ने Yes, वंडरफुली yes, yes, बनाया yes, है, yes. इक्विटी इन्वेस्टमेंट और इंडिया मार्केट में, और उस दैट Life हैज of a हेल्प man in मी a day, टू yeah. एक्सप्लेन अ लेमैन अबाउट द इक्विटी कॉन्सेप्ट। कोई पूछे मुझे इक्विटी समझ में नहीं आता है, 10 मिनट में आई टेक अ चैलेंज टू एक्सप्लेन इक्विटी विद दैट वीडियो। सो थैंक्स टू कनक जी Yes, for yes, yes. Thank having you very that much. wonderful video. And wish you all that. It was amazing, you. right? So now you got a confidence of doing a PPT less one. चलेगा ना? Try करेंगे ना? At least हमारे साथ करेंगे. Master class में करेंगे VC का Thursday, right? तो after 3 big sixer माने अगर 3 लोग भी out हो गए, तो we need someone to protect the wicket, right? And we have got another master blaster from Chennai, Mr. Ramesh Bhatt sir. Thank you, sir. Yeah. So Ramesh Bhatt sir is an expert in doing IAPs for children's education, for their marriages, right? Which is the most difficult thing. दिखता तो बहुत दूर है. It is very far. तब तो देखेंगे ना. When they get बड़े हो गए तब करेंगे. तो sir, one of the biggest questions is when we do the planning, the children's education marriage, the amount is very big. It looks 1 crore, 2 crore. So how do you make sure that they don't get scared? अरे बाप रे, इतना मेरे से नहीं होगा, छोड़ो. Let me not do at all. रमेश भट्ट तो मुझे डरा रहा है. So how do you make sure that it is possible? How do you give conviction to me as an investor? We always say impossible. We'll tell people impossible to be read as I am possible. So that's the first thing. So nothing is impossible in this world. And why? See, I have seen in this hall only 30 to 40% of the people raising their hands, have you done an IAP? Why the 60% is not doing? I'll tell you the reason. Even this gentleman who spoke first, he said, I've done an IAP. Many people did not turn up for IAP. They came and I did not get any business for the first year. That will be normally happening. There is a mindset of MFDs that if you do an IAP, people will come, eat, khana, pina, they will go away. They will not do. That's a mindset. So I thought something different we should do. 1. 2, which is the money which will live long. Even if you do an IAP, what happens is we will do an IAP and after everything is done, people will give all the details. They will give 1,000 ka SIP, 2,000 ka SIP. After getting all that, they will, after 1 year or 6 months, the battery will get down and they will close that and go away. 2. So to avoid this, which money will live long? Children's, 1, and retirement. 2, when people will start thinking about the retirement, when they come to the age of 35 plus. Till that age, they are not bothered about retirement at all. So how to do IAP? That is the mindset. So I started approaching like PSU, Rahul Bhai is approaching PSU, I started approaching the schools. School teachers first go with a beautiful gift to the school. Headmistress, principal, go meet with a lovely gift. Give a beautiful gift to the lady and tell that, Madam, your school is a wonderful school. I have heard a lot about your school. You are doing a wonderful job. First, appreciate. First thing in our, this thing is appreciate them. Everything is over, then you conduct
to conduct an IAP, don't conduct in school. What you should do, you need banda chahiye aapko. What you should do, you tell, I am going to conduct an drawing competition for your children, and all the children will be given a certificate. Certificate will be given to them. So, you collect the data. When you give all this, drawing is through your father's name and mobile number, or mother's name and mobile number. Collect it, collect all the drawing papers, go personally call them, go to their house and tell don't show that picture, don't show that whatever the children has drawn, keep it with you. And tell that parent, your son is so knowledgeable, so creative. What the way he is drawing, no? I don't know whether you have seen his drawing, whether you have time to see his drawing. His father is so happy. My son is doing so. He is very creative guy. Yeah? He is doing wonderful. I don't know whether you have no time. No, I go in the morning, 7 o'clock, come back at night at 10 o'clock. I don't have time. So, we are telling your son is so knowledgeable. It is a time for him you start investing for him. Then, I am conducting IAP. If you are planning, this is the day, this is the place. Like that, 50 parents, 25 parents, 20. We are giving lot of hope for them now. At least you invite 50, 25 will come. Start with that. That's a point number 1. And 2, how the fear, people will have fear. When they will say MBA, MBBS, this much is required, gold. Never ever talk gold, this much is required, SIP is required. That will give a fear. First to start the bus. Then only you should go in the 4th gear. First gear. What is the first gear? Tell that, sir, there is a plan. Your child is just now 2 years old. There is a plan which is available with us. You start monthly 10,000 rupees. Monthly 10,000 rupees till your daughter or son reaches 5th standard. Till your daughter or son reaches 5th standard. Maybe if the child is born from the day 1 he is investing, he might have got a good amount. Since the child is already in the LKG or UKG or something like that, he has to slightly invest a better amount in the first part, then the better money, subsequently 10,000. From the first day the child is born till date, 5th standard of the baby, if you are going to invest 10,000 rupees a month, 10,000 is most of the parent whose children are studying in a good school, it is nothing for them. Nothing for them. 10,000 rupees per month till the child reaches the 5th standard. You invest monthly. From the 6th standard, every month, I will give you 15,000 a month. I will give you 15,000 a month. Parent is very happy. Till 5th standard only I have to invest? Yes. Then, I say when your son or daughter reaches 17 years, that is 18th year when she enters, I will give you back 34 lakhs. We have all worked out with just 10% CAGR. Work it out in Excel. If anybody want, just send me on WhatsApp. Today itself, I will send you that brochure. I have a brochure which gives clearly that how to take, this is the first gear. Then talk about that plan and other things all subsequently, which will be really helpful, and the money will live long. They will not touch this money for a longer period. Very, very, very important. We are doing hard-earned money. We are spending a lot for IAPs, but they come, eat samosa and coffee, and they vanish away. Or even they start an SIP, it will live a maximum for 6 months to 1 year, especially if it is between 24 and 25, they might have already closed. That's it, sir. Okay, right. So actually he covered most of the questions, but still I have got 2 important questions. Maybe you can. So one is, I get in Google all the whatever told, I got all the news. I saw that there is children's fund. I get every day SBI is posting the advertisement that I can go to the bank and do it.
So I know that you do a lot of direct versus regular. So can you tell us how do you tackle direct and regular, number one? And number two, you have also got this ULIP versus mutual fund, insurance versus mutual fund. So can you just tell us about that and how, whether you can share that with? Yes, one is direct. Direct is, many people do ask direct. Because thanks to all the influencers in this world, they are doing the wonderful job. Whether we are doing the good job or not, they are doing a wonderful job. All are started, now many are started. Even in a tier 2 and tier 3 cities, we see people asking for direct. Previously, it was there only in tier 1 city. Now in tier 2 and tier 3, people are interested in direct. Don't tell anything bad to them. Tell them direct is fantastic. You are saving big money. You are saving big money. But I will give you an opportunity. I have done for my own client. I have authentic data in my office. The statement of my client. When he came to my office, he said, "Sir, I would like to invest 1 crore rupees." Then I was very happy because he is recommended by one of my topmost client. And then I said, "Fantastic, sir, you can do it." I gave all this thing, details and all. Then he asked me, "There's something planned called direct. We will save crores of money," I was told. Crores of money? Maybe in 50 years, sir? I asked him. Next question. No, short. Sir, just see that video. What is that video? Just share me the link. I will explain you. He was talking about 25 years ka SIP. That too 5 lakh ka SIP with 15% CAGR growth. Every year he will get 15%. Many things are there. These are all things we explained to cut short. How we do is 50-50 strategy, what we follow. We follow 50-50 strategy. Tell our client, you can invest in the same category which I invest in, but not in the same scheme. I will select a scheme, you select a scheme. If I am putting the money in large and mid cap 50%, mid cap 25%, small cap 25%, you can invest that. Go ahead and do that same way. But don't select the fund which I am selecting. Simple. Which we have done, we have proven. I have a proven track record of last 5 years for 2 of my clients, major clients. Major clients. The CAGR, his CAGR and my CAGR is different. But the client's mindset is always, they will chase the top 3 funds. Always. Take a data, last 5 years, 5 years back, which is the top 3, which is sitting in bottom 3 right now. I need not tell the fund name, you will know it. All my 25 funds is in top quartile. But all that particular top 25 funds is in bottom quartile today. It will happen like that. It's a cycle. Bad will become good, good will become bad. Only MFDs are just like that, always good. Right, sir. Okay. Right. So can you just give your phone number to them so that they can WhatsApp you and you can send Anybody don't have my phone number in this hall? See? See. Okay. So whoever wants that My number is brochure- 989840 858585. Simple. 9840-858585. I am Ramesh Bhatt from Chennai. Thank you very much, sir. A big round of applause to Ramesh, sir. Huh? Yeah. Of course, we are all in one group, but most of them, sometimes they don't save. And when we do that, it becomes actionable. कि अभी उनको WhatsApp message भेजेंगे, मुझे वो brochure और Excel sheet free में मिलेगा. And when you get that, then you do the actual work. Otherwise, नहीं होगा वो. Right? So when all this happened, we want the T20 player who is the youngest so that they can do all the hard work and make sure that energy comes in. Who is that? Bhavesh, our superhero. Yeah, brilliant. Bhavesh. Thank you, sir, for having me. Thank you. Yes. So we always have only one question with you. Yeah. How can you bring that energy and fun into such a serious subject like a investment, yaar? So everybody knows finance is serious, right, guys? Finance is serious. But teaching finance should not be serious. Kanak sir ने हमारे लिए games बनाई हैं. I think I have always resonated with only one thought.
You tell, you teach people anything and everything, they will forget everything. But they will not forget how did they feel. They will not forget the experience they had. If you're able to achieve that, if you're able to give them the experience in your 30 minutes or 40 minutes, the thing that you do, the IIP that you do, I think you're done. And I've tried with multiple organizations, the asset allocation game and everything. You know, once they become my clients, what they tell me, you know, when the games, during the asset allocation game, you teach them कि Nifty ऊपर है, ये ऊपर है, and you give them the fake money, and then you play a game. One of my clients tell me one of the day when the market was down, today I actually felt that we are in that game. They can forget my name, but they can never forget the pain of losing that fake money and actual the money. So you are making them understand about asset allocation in a funny way, in a gamification way. I think मेरा जो strength है, every city in India always have a HR group. आपके शहर का मुझे नहीं पता, हमारे चंडीगढ़ में एक HR group है. Try to get hold of that group or try to hire somebody from that group. एक बारी उस ग्रुप से आपने किसी को हायर कर लिया, probably 200-250 HRs of small and medium organizations are a part of that. Chat GPT सबके पास है, नहीं है, Perplexity का फ्री का वर्जन एयरटेल दे रहा है. Please make a one pager कि आपको IIP क्यों करना है. What is the value add that you're giving to the organization? One pager simple बनाओ. मैं फाइनेंस का नाम भी नहीं लिखता हूँ, मैं तो कहता हूँ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है भाई, मजा आने वाला है, गेमिफिकेशन है, आपके एम्प्लॉयज को मजा आएगा, मेरी गारंटी है. आप वो उस ग्रुप में घुमाओ. या I started with the LinkedIn thing. How many of you here have a good LinkedIn, strong profile? I think very, very important. If you want to do IAPs in a corporate, everybody will know you from your LinkedIn profile. अगर आपके पास नहीं है, तो इस इवेंट से एक चीज घर प्लीज लेके जाइए. लोगों की LinkedIn प्रोफाइल देखो, उसको कॉपी पेस्ट करके बनाओ यार, प्लीज बनाओ. आई थिंक LinkedIn प्रोफाइल होना itself is a very big thing कि आपका वो टेस्टिमनी है that you are strong and you are corporately connected. मैं 10 साल मैंने नौकरी किया है कॉर्पोरेट में. I already had a profile, but मैंने उसको पूरा चेंज किया. And of course, वो मेरी tagline में अभी भी आता है that I used to design cars, now I design portfolios. But it's very important that you have one and you try to connect one. How many of you here have a link tree? किसी ने सुना है link tree के बारे में? All your profiles are connected in a small link. जब आप किसी अपने client को भेजते हो, अब अलग-अलग उसको चीजें भेजने के बजाय send him a link tree. This is a small link, everything is there. Your company profile, your social media, all profiles, your LinkedIn, everything is there. एक ही लिंक में सारी चीजें आ जाएंगी. आई थिंक यू आर डन. लिंक्डइन के बारे में अगर मैं बात करूं, लिंक्डइन का एक एडवांस वर्जन है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर. गाइस, 1-2 साल पहले एनवीडिया इट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि एनवीडिया का स्टॉक इतना ऊपर हो गया. अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज दे मेड ह्यूज मनी. मैंने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल किया अबाउट एनवीडिया के एम्प्लॉयज कि अगर आज आपके पास 5 करोड़ का कॉर्पस है, क्यों आपको अपनी कंपनी की इक्विटी से पैसा निकाल के थोड़ा इंडियन म्यूचुअल फंड्स में डालना है. सेल्स नेविगेटर हेल्प यू फाइंड आउट पीपल जो कि एनवीडिया में है और जिसको आप टारगेट करना चाहते हो. और मैंने उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया टू 200 पीपल. आई गॉट 4-5 क्लाइंट्स. 15,000 रुपए की सर्विस है गाइस. अगर आपको नहीं आता, प्लीज फाइंड आउट पीपल हु कैन डू दिस फॉर यू. So Bhavesh, one of the things is when you play the games, okay, so how do you make, which is that game which is the most recallable? मतलब वो लगता है कि इस गेम की वजह से मैं आपका इन्वेस्टर बन गया. There are a lot of games, right? तो आपको कौन सा मैं लगता तो है एक ही गेम खिलाता हूँ. I only play the asset allocation game. Of course, when you do an IP, everybody needs to have a energizer. Everybody needs to have an icebreaker. That is the call of the, जब आप स्पीकर बनते हैं, ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं, तो कि आपको कस आइस ब्रेकर डालना है,
कब एनर्जाइजर डालना है, कब आपको फील हो रहा है कि ऑडियंस हो रहा है, बीच में फिलर आना चाहिए, बीच में कुछ आना चाहिए. मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द पावर पॉइंट, इट्स अबाउट पावर इन योर पॉइंट. ठीक है ना? अगर आपके पॉइंट में पावर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. तो अगर आदमी सब लोग सो रहे हैं, कुछ अगर आपके ऑडियंस में एनर्जी नहीं है, अगर आपने उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिया, एंड ऑफ द स्टोरी. तो आपका भी टाइम वेस्ट है, उनका भी टाइम वेस्ट है, वो आपको कभी नहीं बुलाएंगे और आपका भी पूरे का पूरा समय खराब है. तो कोई भी गेम उठाओ, उसके ऊपर मास्टरी करो और वो खिलाओ. आई थिंक यू डन. तो फाइनल क्वेश्चन विच आई आस्क टू एवरीवन. तो डायरेक्ट क्या अगर मालूम है पूछेंगे तो हाउ डू यू डू डायरेक्ट एंड रेगुलर, एंड हाउ डू यू गेट दैट कॉल ऑफ एक्शन. मतलब मैंने तो सुन लिया, आई फेल्ट गुड, बट व्हाई शुड आई कम टू यू. सो सर, of course, IAP करने के बाद we have our feedback testimonial forms. We send a lot of PDFs. If somebody registers, मेरे QR कोड पे जाके feedback form भरता है, उसमें एक क्वेश्चन होता है कि if you want to discuss a finance session with us, तो ये टाइम स्लॉट्स हैं और ये डेट है, तो आप हमें बताइए. तो हमने वो डेट डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, तो वो हमें गूगल फॉर्म्स में आ जाता है. और वी मेक श्योर कि सब लोग वो फॉर्म भरें. उसके लिए हम उसको गिव अवे भी देते हैं कि हमने कुछ PDFs रखे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको चले जाते हैं. एंड यू आस्क्ड मी अबाउट डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर. तो सर वो हम ना पंजाबी में बोलते हैं कि अगर तेरे को इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर 1% तो तू चिंदी है भाई. you're not worried about your 99%, so happy. So we are not chasing people who are, जो ज़्यादा सियाने लोग हैं, we are not chasing, we are happy to lose them. So it's okay for us. So जो आता है आने दो सर. जो who wants our advice, that is good, no? You only chase people who are happy with you. You don't have to chase everybody. There's a 150 crore audience. You can do a lot of stuff with them. So one of the secrets which I wanted to ask is, how do you get all these superstars on your podcast? वो तो आप भी ले सकते हैं सर. आप उनको धंधा देते हैं तो वो आप उनको बुला सकते हैं ना, right? You just tell them, let them give them the, because for me, So see, it's always the beginning. The beginning is the most difficult thing. I was from a very different background. I used to design. एक रूम में बैठे बैठे कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करनी होती थी कैटिया पे. I was never into speaking. I was never into finance. So one day I met Mr. Ashish Sumaiya. I told him, sir, it's been 1 year that I've been doing this. I think I want to talk to you on camera and I want to record something. So if you've talked to Ashish Sumaiya, you would know how friendly he is, right? Like, आजा भाई कभी भी करते हैं. I told my dad, मैंने कहा ये तो ऐसे भाई भाई बोल के बोल रहे हैं. इतने friendly हैं क्या ये ऐसे मुझे बोल रहे हैं. और it happened to be my first podcast and उसके बाद से किसी को भी approach करो. Everybody is very open and free. And if you do that, I think it adds to your credibility. It adds to your engagement with your current audience. So it's a big booster that you can have. And when you give business to these guys, you have that right that you can ask कि भाई मुझे आपके साथ कुछ piece record करना है. So please do, it's your right, I think. And the information and the ideas that these guys have, it should reach to your audience and it adds to your credibility what best. yes, thank you very much, Bhavesh. Thank you, sir. Thank you. Time would have taken more. No, thank you. तो अभी इतना इंडिया का हो गया, अभी थोड़ा NRI का बात करेंगे. तो NRI मतलब कौन आएगा हमको याद? मुकेश भाई, राइट, अमिताभ बच्चन. So thank you very much to all of you. यस मुकेश भाई, हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है Yes. कि जब मैं NRI में जाता हूँ तो हाउ डू आई गेट द क्लाइंट्स. मुझे वहाँ कोई भी पता नहीं है. आई डोंट नो एनीवन देयर. हाउ डू आई come to know about them and how do I make them come at one place? Everyone is busy. So how do you get those people and how do you make sure that it becomes at least 20-30 people तो हो जाएंगे? So actually क्या होता है कि पहले आपके थोड़े 1-2-3 लोग आपको पहचानने चाहिए. तो जैसे पहले मैंने अप्रोच किया, I done first my meeting in UK in 2015, September 2015. तो माय ब्रदर इन लॉ इन UK, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग मीटिंग में आना चाहते हैं, मैं एक प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो लंदन आ रहा हूँ. तो बोलता है यहाँ तो UK में कोई नहीं आता है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है. तो मैं को सब लोग आने वाले हैं, तो सबको मैंने फ़ोन किया, इनवाइट किया. और ऑलरेडी मैं 2010 में और 14 में गया था. तो एक जगह डिसाइड किया और सबको इनवाइट किया 150 लोगों को, तो 60 लोग आए थे.
देखो आईआईपी लोग क्यों नहीं कर पाते, चाहे इंडिया में हो या लंदन में हो, वो लोग बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं और बेस्ट कुछ होता नहीं है। जैसे बावस ने बताया ना, बेस्ट कुछ होता नहीं, आपको बोलना है। पीपीटी नॉट इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा टोन कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब करने के लिए आपको जज्बा चाहिए कि मुझे करना है। जैसे उन्हें बताया कि भाई लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, मुझे नहीं आता है, मैंने एक बंदा हायर किया, मैंने बावस के साथ भी उसका डेमो करवाया था। तो कहने का मतलब क्या है सर, आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। रही बात एनआरआई की, तो मैंने वहां इवेंट किया यूके में। सर उस इवेंट में जो एक बंदा आया था, उसके बाद मैं एक मैरिज में गया, दोबारा उनको मिला। टुडे इज माय नंबर 1 क्लाइंट विद 23 करोड़ ऑफ AUM, सिंगल क्लाइंट। अगर मैंने वो 15 में आईआईपी नहीं किया होता, 1.5 लाख का खर्चा नहीं किया होता, तो आज मेरा वो क्लाइंट नहीं होता। और उससे अलावा बहुत सारे क्लाइंट बने नियर एंड डियर में। फिर मैंने उसके बाद कंटिन्यूसली प्रोग्राम चालू किया। यूएस में 2018 में एक इवेंट किया, फिर 22 में किया। 22 में मेरा एक क्लाइंट बना यूएस में, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि सर मैं आपके ग्रुप का एक मीटिंग करना चाहता हूँ। तो बोलेगा तो यूएस आएगा? मैं यस। तो सितंबर 22 में मैं सालोड गया, वहां मैंने एक हॉलिडे इन में इवेंट किया, 62 लोग आए थे। आज मेरे 27 क्लाइंट हैं और मैंने 3 साल इवेंट किया, 22, 23, 24। तो सर कहने का मतलब क्या है सर, आपको एक बंदे को अप्रोच करना पड़ेगा। मतलब एक बंदा आपका कोई आउटसाइड इंडिया है, उसको बोलो सर मैं आना चाहता हूं, मिलूंगा। अपने नियर एंड डियर बुलाओ, आप थोड़ा अप्रोच लगाओ। पहली मीटिंग में 10, 15, 20 लोग आएंगे, शायद आप फेल भी हो जाओगे, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट बहुत डिफिकल्ट है। अभी तो मैं बहुत जगह पे कर रहा हूं। अभी एक क्लाइंट मेरा था मस्कत में, एक ही क्लाइंट को मिलने में मस्कत गया, उसके घर पे मैं 7 दिन रहा। वहां मैं ग्रुप मीटिंग किया, इवेंट किया। उसने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट बाय कर लिए क्लाइंट ने। आज मेरे मस्कत में 7 क्लाइंट है। सर टुडे आई हैव 275 NRI, 88 क्लाइंट इन US, 89 in UK, 26 Canada, 28 Australia and other country, Germany, Europe and something. 275 client. अब मेरा टारगेट है अगले 1 साल में 500 होना चाहिए, 500। ये डायरेक्ट बायरेक्ट का कोई झंझट ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट में क्लाइंट आपसे पैसा बचाना चाहता है ना, मेरा क्लाइंट तो मुझे और एडिशनल पैसा देता है, टिप। यस डेरा अभी बहुत है। मतलब किसका ओपनिंग? नहीं सर देखो, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, सर मोदी साहब ने सारा काम कर दिया, आपको एंकेज करना है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी, सर इंडिया ग्रोथ स्टोरी, कोई फंड बंड का नाम नहीं देना है सर। पिछले 10 साल में इंडिया में 6 से 10 गुना पैसा बना है कि नहीं बना है? साला हम स्मॉल कैप दिखाने चले जाते हैं, उसको बताओ ग्रोथ स्टोरी दिखाओ। जैसे बताया ना, आप 8 साल 10 साल पैसा डालो, बाद में एस्टेब्लिश समझाओ। आज लोग गिफ्ट सिटी की बात करते हैं। आई ऑलरेडी लॉग इन 7 केस। सर गिफ्ट सिटी इज ए सिंपल प्रोडक्ट। मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं गिफ्ट सिटी। ओके, नॉर्मल प्रोसेस क्या है? फॉरेन से पैसा एनआरई अकाउंट में आएगा, एनआरई अकाउंट में से इन्वेस्ट होगा, वहां से विड्रॉ होगा, 12.5% TDS, 13% डिडक्ट हो जाएगा, आपके एनआरई में आएगा, फिर वो वापस ले जा सकता है। और उसको यहाँ ITR करना पड़ेगा, वो TDS एडजस्ट करना है। तो पहला पॉइंट। अब MFD क्या सोचता है? सर यूएस वाला तो डॉलर एप्रिशिएट होता है, नोशनल पे भी टैक्स देना पड़ता है, तो MFD पहले से ही वो नेगेटिव थॉट था। तो कहने का मतलब बहुत सारे NRI का इंडिया में FD पड़ा है ऑलरेडी, तो उसको आपको म्यूचुअल फंड में लाना है। फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड, उसका अगर FD भी है, यूएस लोग क्या बोलता है, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो वहां पे, यूएस में कोई काम नहीं करते हो आप, अगर आपका इंडिया का XYZ इनकम है, आपको वहां टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज रूल। तो सर मैं तो आपको 6% से 15% पे उठा रहा हूं ना, FD में तो इतना पैसा पड़ा है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब गिफ्ट सिटी में नॉर्मल प्रोसेस में NRI इन्वेस्ट फॉर इंडिविजुअल नेम, अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकता है। गिफ्ट सिटी में वो कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। गिफ्ट सिटी में जो फॉरेनर्स है, नॉट इंडियन ओरिजिन, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर आप कंपनी का पैसा ला सकते हो। मेरे 4 फंड ने एक कंपनी बनाई,
मैंने 22 मई 2024 को मैंने इवेंट किया सालोट में। 29 मई को मेरे 4 फ्रेंड ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था गिफ्ट सिटी LLC, और उसने $2 लाख डाला। अभी एडिशनल परचेस आएगा। तो सर गिफ्ट सिटी में सिंपल है, पैसा वहां से आएगा। गिफ्ट सिटी में किसी भी गिफ्ट सिटी विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, वहां ऑफिस पड़े हैं, 2 ऑपरेशन के बंदे बैठे हैं, लोग गिफ्ट सिटी देखने आते हैं। यस सर। नहीं अभी उतना टाइम नहीं है, we are तो behind सिंपल, schedule. तो गिफ्ट सिटी में सर कंपनी का पैसा, इंडिविजुअल के पैसा सारा ऑनलाइन है, एक दिन में काम हो जाता है आपका, और $1.5 लाख आता है, GST भी नहीं लगता है आपको। मुकेश भाई हमको टाइम नहीं है, तो इसलिए और एक सिंपल क्वेश्चन, आप सिर्फ आउटसाइड ने इंडिया में बहुत करते हैं, हाँ। एंड हमने सुना है आप IAP अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग टॉपिक से करते हैं, तो कैन यू जस्ट गिव इन देखो, सिंपल लैंग्वेज कौन सा करते हैं? IIP क्या करते हैं सर, हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट का IIP करते हैं। फिर नेक्स्ट IIP में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपने नियर एंड डियर को लेके आओ, और ये रिपीटेड करते हैं। कुछ बार क्या होता है, क्लाइंट 6 बार आता है, बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं मुझे इस तरह से पैसा डालना था। अब जैसे बोला बाहर करते हैं, जैसे मेरा मुंबई में क्लाइंट था, 21 में बना, तो मैंने बोला सर आपके ग्रुप का एक मीटिंग करना चाहता हूं, आप जब बोलो जहां बोलो। उसने 12 लोगों को इनवाइट किया विथ वाइफ, आज 8 क्लाइंट है वहां से, और मेरा मुंबई का 17 क्लाइंट बने एक ही क्लाइंट से। मुंबई का AUM है 31 करोड़। सर आपको अप्रोच करना है। देखो आपने वो पिक्चर देखा है ना, बीमा बचत बढ़त करके IDFC का एक वीडियो है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, तो मैं लंदन जा रहा था 2022 में, मेरे साथ बैठा था, 1 घंटे बाद पता चला वो है। तो उसने बोला सर मैंने वीडियो बहुत बनाए हैं, लेकिन मेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है। टुडे इज माय क्लाइंट, जिसने 10, 12, 15 साल पहले अवेयरनेस वीडियो बनाए थे। तो सर सिंपल है, आपको अप्रोच करना है किसी भी क्लाइंट को। देखो हर एक क्लाइंट का एक सर्कल होता है, उस सर्कल में आपको एंट्री मारना है। उसमें से कुछ इवेंट हम AMC के थ्रू करते हैं, और कुछ इवेंट इंस्टेंट हो जाती है, वो खुद से पैसे से करते हैं, खुद से पैसों से, वो भी आपको करना पड़ेगा। करेंगे ना तो हो सकता है सर। बस ओके, थैंक यू वेरी मच, बिग राउंड ऑफ Thank you, अप्लॉज। thank you. हमको आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम 1 आवर दे देंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वी जस्ट क्विकली जाएंगे। तो मास्टर स्टोरी टेलर जो है कौन है हमारा इसमें, वन ऑफ द बेस्ट, हमारा VCCC में डालते रहते हैं वीडियो, दैट इज वरुण मित्तल। जय हो। जय हो। सबसे पहले तो आप लोगों को जय हो, कनक जी को जय हो, और आज ये पता चला कि इन सबको भी जय हो। देखिए, एक थे भगवान विष्णु, उन्होंने रचना करी, ठीक है, बड़े हृदय वाले थे, और फिर उन्होंने अवतार ग्रहण करे। वो कनक जी हैं और ये अवतार हैं। इनमें से कोई राम है, कोई परशुराम है, कोई कृष्ण है। एनी हाउ, ये मेरे मन में भाव आ रहा था। पहले मैं एक ही को गुरु मानता था, मेरे काफी सारे गुरु हैं IAP में। सर प्लीज। यू आर डूइंग ओके। तो ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है ना, तो यू जस्ट देखिए तो ऐसा ही देखिए, होता बस है, हमको ये है- आखिरी स्पीकर के साथ यही प्रॉब्लम है, या तो पहले वाले स्पीकर सब बोल चुके हैं और सामने वाले सब सो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ क्या बता, कौन सा स्टोरी नॉर्मली विल गेट कनेक्ट विद देखिए स्टोरी जो होती है ना, वो सोच के नहीं बनाई जाती, स्टोरी बन जाती है। स्टोरी बनाने के लिए पहले से सोच के आओगे, फिर वो बनाओगे, सामने वाले ने कुछ और पूछ लिया, आपकी स्टोरी पोस्ट हो जाती है, तो वो इंस्टेंट होता है। हमको राम और कृष्ण का चाहिए, that's what। अरे ये तो अच्छी बात है, लंबी लंबी स्टोरीज हैं। चलिए ठीक है, मैं रामकृष्ण वाली स्टोरी, मेरे को लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बाहर टी ब्रेक हो रहा है, कनक जी भी परेशान है। मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, चलो दूसरी बात बताता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स, चलो IAP में मैं ये ज्यादातर पूछता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स फीलिंग पे होनी चाहिए, भावनाओं पे होनी चाहिए, या संभावनाओं पे होनी चाहिए? संभावनाओं। तो मैं आपको ये पूछता हूं कि हम किस तरह से भावनाओं और संभावनाओं में भटक जाते हैं।
एक बात सोचिए कि आप मुंबई में बैठे हैं और एक पब है, रात के 11 साढ़े 11 बजे का समय है और उस पब में एक महिला मदिरा पान कर रही है और आपको ये बताना है कि वो महिला कौन है। कितने लोगों को ये पता है, ये स्टोरी पता है? ठीक है, सुनिए। ठीक है, जिन्होंने सुनी है वो ना बताएं, बाकी लोग बताएं, क्योंकि सब आईएपी कर चुके हैं ना। तो अब इन्वेस्टर से पूछा तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि भाई संभावनाओं के आधार पर निवेश होना चाहिए। अब वो कैसे भावनाओं में बहते हैं, इसका उदाहरण है ये। पूछा गया कि भाई वो एक जो 35 साल की महिला बैठी हुई है वो कौन हो सकती है, ये आपको अंदाजा लगाना है। वो हो सकती है एक टीचर, वो हो सकती है एक नर्स, वो हो सकती है एक आर्किटेक्ट, या फिर वो हो सकती है, 4 ऑप्शन थे, मॉडल। कौन हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकती है? मॉडल होती है ना? तो फिर मॉडल कैसे हो सकती है वो? अब ये संभावनाएं खोजना शुरू करें। मुंबई की आबादी कितनी होगी? 2 करोड़। महिलाएं कितनी होंगी? 1 करोड़। 1 करोड़ महिलाओं में से 35 साल से ज्यादा उम्र की प्रोफेशनल मॉडल्स कितनी होंगी? वेरी फ्यू। नर्स कितनी होंगी? बहुत थोड़ी। टीचर्स कितनी होंगी? सबसे ज्यादा टीचर्स होंगी। तो संभावनाएं क्या हैं टीचर्स होने की? और आपने संभावनाएं तो खोजी ही नहीं, आपने भावनाएं खोजी। तो ज्यादातर इन्वेस्टर भावनाओं के आधार पर निवेश का डिसीजन लेते हैं और इस डिसीजन को ठीक करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसको सलाहकार कहते हैं। तो सलाहकार की जरूरत क्यों होती है? फिर वो राम और कृष्ण की कहानी आती है। कहानियां कहते जाइए, इन्वेस्टर एंगेज रहेगा और आखिरी तक आपकी बात को वो आपकी कहानी के थ्रू याद रखेगा। बस इतना ही मैं करता हूं। बाकी कनक जी का जो गेम है वो तो वंडरफुल है, सारे गेम्स। और वीसी होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? वीसी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास बहुत सारे कनेक्ट्स हैं। आप जहां कहीं अटक रहे हैं आपके पास सब चीजों के कनेक्ट्स हैं। आप टैक्सेशन में अटक रहे हैं, आपके पास कनेक्ट है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में अटक रहे हैं, आपके पास कनेक्ट्स हैं। आप जिस स्टेट में अटक रहे हैं, आप लैंग्वेज में अटक रहे हैं, आपके पास ऑप्शन। तो वीसीज के साथ कनेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आईएपी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करिए और वीसी फैमिलीज को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much for helping me with my time. Okay. तो दुनिया में सबसे अमीर कौन है? Who is the most richest person in the world? Richest person in the world, whether it is today, 200 years back, 500 years back, 200 years आगे, he is the person who always gives. अगर दे रहा है तो उसके पास कुछ भी, उसके पास पूरा है ना, इसलिए तो दे रहा है, राइट? तो हमारा वीसी एक है, जो भी इन्वेस्टर एसआईपी करेगा उनका नाम में गाय का कुछ कर रहे हैं आप, तो he will explain about that and we want people like him because he is not helping about making money, he is helping about Sanatan, Jain Dharma, whatever it is, it is better that we hear from him. So please welcome Mr. Mahesh Gattani, our cycle hero, who cycles from Amravati to Ladakh, Manali, and now he is going on a 421-kilometer cycling trek. Please welcome. थैंक यू वेरी मच। पहले आप हमको गाय का बता दीजिए, फिर आप साइकिलिंग का बता दीजिए। देखो, मैं आपने जो सवाल पूछा है कि वो गाय का एसआईपी का, वो भी मैं बताता हूँ। कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेशन में हैं? कोविड में सबकी इनकम गिरी, सबकी। कोई डॉक्टर था, अगर उसने ऑपरेशन नहीं किया उसकी भी इनकम गिरी।
कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था, उसने प्रीमियम उसके क्लाइंट ने नहीं भरा, उसकी भी इनकम गई, होटल की गई। लेकिन कोई एसेट मैनेज कर रहा था जिसको ट्रेल मिल रही थी, उसकी इनकम गई। और उस समय हमको कोई बहुत महंगे कपड़े और बहुत लाइफस्टाइल ये सब चीज़ों की नहीं जरूरत थी। हमको पता चल गया था कि हमारे को कितनी चीज़ों की जरूरत है। कोविड में करीब करीब हम 40 दिन घर में बैठे थे। फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर आया, फिर ओपन, फिर किया, क्लोज किया, ये सब लोग आप जानते हो। मुझे उस समय मैंने साइकिलिंग का एक पाला कि भाई मैं ग्रुप में जाता हूँ और ग्रुप में जाके एक्सरसाइज होती नहीं है, सारे बंधन सरकार ने लगा दिए, सब अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तब मैंने एक सिंगल साइकिलिंग स्टार्ट की। तो पहले दिन 5 किलोमीटर गया, मुझे 1 घंटा लगा। दूसरे दिन 6 गया, 7 गया, 8 गया। एक वो साइकिलिंग का हुआ और साइमल्टेनियसली मैं एक देख रहा था, एक गाय एक खेत के बाहर या एक किसी कॉलोनी के बाहर प्लास्टिक खा रही थी। तो मुझे है ना वो वहाँ पर बहुत फील हुआ। तो मैं दूसरे दिन उस गाय के लिए, अगर मैं जब साइकिलिंग को जाता हूँ, लेह लद्दाख जा रहा था तो एलिवेशन की साइकिलिंग करनी पड़ती है, तो मैं उसको एक को रिलेटेड करता हूँ। अभी मैं आपको वो वीडियो भेजता हूँ। मैं उस एक कुत्ते को 3 किलोमीटर से आवाज़ देता हूँ, टॉमी, वो है कुतिया, उसको बोलता हूँ टॉमी। 3 किलोमीटर से वो पास में आ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम इतने अच्छे प्रोफेशन में, हमने इतना अच्छा सबने पैसा कमाया, जिसको जो नहीं चाहिए वो सब कुछ मिला। सब लोग अपने अपने अनुभव बता के गए। मेरे पास ये जितने 9-8 स्टालवर्ट आए, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एकदम बालक मंदिर का एक डफोर स्टूडेंट हूँ इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। मैं आज भी सीख रहा हूँ और आज मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। अभी आपने कहा दशा अवतार, रियली आप दशा अवतार नहीं, मैं यहाँ तो 200 अवतार के बीच में से जा रहा हूँ। मैं छोटे से 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। देखो, जब मैं कहता था कि आप SIP आपके लिए कर रहे हो, तो आप एक जीव जंतु के लिए क्यों नहीं SIP कर सकते? तो किसी ने कहा, पूछो महेश भाई आप बोलना क्या चाहते हो? मैंने कहा यहाँ जितनी भी गौशाला है अमरावती में, क्यों नहीं हम उनको एक 10 रुपए की रोटी दे। अगर आप 10-10 रुपए डालोगे, 300 रुपए इकट्ठा होगे, 3600 रुपए होगे, उस गौरक्षण में डायरेक्ट जाने दो। ऐसे करने से 500 SIP मेरी 2 महीने में हुई, जिसको बोलते हैं डोनेशन वाली SIP। जरूरत ही नहीं थी। सब लोगों ने कहा कि महेश भाई आपने वो टारगेट किए, चलो अब हम यहाँ से ये शुरुआत करते हैं। दूसरा, अभी आपने कहा कि साइकिलिंग का, साइकिलिंग में क्या होता है, ये ना लंबा एक्सरसाइज है। 100 किलोमीटर जाते हैं। अभी तो मैंने महंगी साइकिल आने लगी है, तो 4 घंटे में हो जाती है। अगर आम आदमी चलाएगा 5 घंटे लगते हैं। कोई इसमें से साइकिलिंग करता है रेगुलर तो उसको पता होगा। तो साइकिलिंग के साथ में क्या होता है, मेरा बिजनेस अभी कैसे चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट, हमने सब स्टेट डिपार्टमेंट, ये लोग हैं ना, सब साइकिलिंग करते हैं और 4-4, 5-5 घंटे होते हैं। तो उनका सारा कैटरिंग का काम मेरे पास होता है। उनको पता है कि आज महेश गट्टाणी नहीं आया तो कुछ ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अगर महेश गट्टाणी आया तो सब कुछ अपनी व्यवस्था है। तो ऐसे ही क्या है श्रीकांत भाई, मेरे साथ में सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर्स, ये लोग हैं ना, सब साइकिलिंग चलाते, तो मेरी SIP वैसे बनती है। मैं करता क्या हूँ, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मैं मेरे प्रोफेशन बढ़ाने के लिए करता ही नहीं हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ कि 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो बोला जब वो 35-25 साल में किसी को जॉब मिली और 35 साल में कोई रिटायर्ड हुआ तो आपको कितने मिलते होंगे? तो कोई बोलता है क्लास 1 ऑफिसर हमको 81 लाख मिले, कोई बोलता है हमको 70 लाख मिले, कोई बोलता है हमको 40 लाख मिले। मैं बोलता हूँ सिंपल, अगर आपने ईमानदारी से 1000 रुपये भी भरा, 35 साल भरा, 35 साल की स्कीम अभी हमारे पास में है, इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप 1000 रुपये 35 साल भी भरते हैं और 15% का भी रिटर्न है, उस स्कीम ने 16 दिया, 15% का भी रिटर्न है, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो मैं बोलता हूँ आपको आपके बेसिक सैलरी में से सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% है, आपका कंट्रीब्यूशन 10% है। तो अगर आप समझ लो 24% पैसा अगर आपके बेसिक में से जा रहा है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ आप ये पता करो आपके NPS में वो पैसा कितना कहाँ जा रहा है। कुछ गवर्नमेंट में जा रहा है, कुछ इक्विटी में जा रहा है, कुछ जा रहा है, उस NPS का ध्यान रखो। और नहीं तो फिर हमारी SIP लो। तो मैं SIP इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मैं मेरी कॉस्ट पर लेता हूँ। मैं वहाँ पर कोई ऐसा बंधन रखता नहीं हूँ AMC का। तो ये एक मेरा एजुकेशन का पार्ट है। दूसरा, कनक भाई ने कहा हर 3 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में 3 महीने के बाद
हर सीईओ को मैं अमरावती बुला के एक बड़ी बिग इन्वेस्टर मीटिंग लेता हूँ जिसमें 500-600 इन्वेस्टर होते हैं। अभी हमने 50-50 इन्वेस्टर जो मेरे टॉप के इन्वेस्टर हैं, जो 20% इन्वेस्टर 90-80% बिजनेस रखते हैं, उनके लिए इस तरह से मीटिंग लेता हूँ। ऐसा हर क्वार्टर में एक मीडियम मीटिंग, इन्वेस्टर मीटिंग, एक बड़ी और एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। लेकिन कनक भाई, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम में अभी मैं अपना जो वोलेटिलिटी कोच का गेम है वो पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। रियली मैंने नहीं बताया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही बहुत सिंपल वे में काम करता हूँ, ऐसे ही काम चलते रहता है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। साइकिलिंग, गौ सेवा और SIP, ये तीन ही चीज़ों पे मेरा काम चलते रहता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। राइट, तो मोस्ट इंस्पायरिंग है ना, तो ऑब्वियसली सब सीखने के बाद हमको देना है, तो दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई वी हैड महेश जी एट द एंड। तो आपने देखा, इफ यू सी, इट इज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, राइट, नॉर्थ से, साउथ से, सेंट्रल से, पूरा इंडिया से है। एंड वी हैव गॉट VC मास्टर अक्रॉस फ्रॉम इंडिया, IAP किंग्स। तो वी वांट यू टू जस्ट नॉट जस्ट क्लैप, वी वांट यू टू लर्न, implement these things and make your own IAP। and next year हमको जब मिलेंगे ना, तो आपका AUM at least 30-40%, it should have been more, right? So will you promise me that? Great, thank you very much.